Assalamu alaikum, class 9th. Today we have to do question number 5 and 6 of exercise 4.4. And today we are going to end this exercise by doing question number 5 and 6. So question number 5 consists of two parts and question number 6 consists of one part. And question number 5, the first part is that if x equals to 2 plus square root 3, then we have to find the value of x minus 1 over x and x minus 1 over x whole square. So that question is as same as question number 3. We have to simply find firstly the value 1 over x, then we have to rationalize it, and then we have to do x minus 1 over x. Then we have to subtract these two values. And then we have to take the square to find the value of x minus 1 over x whole square. So let's start. X equals to 2 plus square root 3. So 1 over x will be equals to 1 over 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. लेकिन जो स्क्वायर रूट टर्म है वो डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए. देन वी हैव टू डू रैशनलाइजेशन. फॉर रैशनलाइजेशन वी हैव टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म, दैट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस कॉन्जुगेट. Then in the numerator 1 multiplied by this term, we will get the same term, that is 2 minus square root 3, and in the denominator there is a formula completion, that is a square minus b square. So we have to write a square, that is 2 square minus square root 3 whole square. Right now in the next step, the numerator will remain same, 2 minus square root 3 over 2 square, that is 4, minus square root will be cancelled out with square and we will get 3. So 2 minus square root 3 over 4 minus 3, that is 1. So we will get the value 1 over x, that is 2 minus square root 3. But we have to find the value of x minus 1 over x. So the value of x is given in the question, that is 2 plus square root 3. So we have to put 2 plus square root 3. The sign of difference, the sign of negative. Now 1 over x is 2 minus square root 3. So write in the bracket 2 minus square root 3. In the next step, we have to open the bracket, that is 2 plus square root 3 minus 2 minus minus plus square root 3. Now plus 2 and negative 2 will cancel out, and we will get 1 square root 3, 1 square root 3, 2 square root 3. That's the value of x minus 1 over x. But another thing is needed in the question, that is you have to find x minus 1 over x whole square. So just take the square on both sides. We will get x minus 1 over x whole square. This implies that whole square equals to, दोनों साइड पे होल स्क्वायर लिया जाएगा. नाउ x माइनस 1 ओवर x, आपको उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछी हुई है. इक्वल्स टू, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर इज़ 4 and this square will be cancelled out with this, multiply by 3, you will get your answer, that is 12. So x minus 1 over x whole square is equals to 12. Question number 5, part number 2, the value of x is given in the question. You have to find the value of x plus 1 over x. So that's simple कि आपने पहले x गिवन है, 1 over x फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर उसको रैशनलाइज करना है और फिर आपने उसमें x को ऐड करना है. उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है. एंड देन आपने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी आपने उसका क्यूब फाइंड करना है. नीचे आपको कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं, आप इनको भी देख सकती हैं. हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 2. All right students, x is given the question, you have to find the value of 1 over x. So 1 over x will be, रेसिप्रोकल कर देंगे आप इन टर्म्स का. एडिशन वाला जो फैक्टर है वो ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2. स्टूडेंट्स अभी इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इसमें x को ऐड कर लें, उसके बाद हम इसको इकट्ठा रैशनलाइज करेंगे. x प्लस 1 ओवर x, ये वैल्यू हमने फाइंड करी जो पहला पार्ट उन्होंने पूछा हुआ है, x प्लस 1 ओवर x. तो x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2
over square root 5 plus square root 2 plus 1 over x, that is square root 5 plus square root 2 over square root 5 minus square root 2. अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। वैसे आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि इस टर्म को अलग रैशनलाइज कर लें, इसको अलग रैशनलाइज कर लें। आज मैं कुछ और मेथड करवा रही हूँ आपको। आपको पता है ये दोनों फैक्टर्स आपस में डिफरेंट हैं, तो दोनों ही फैक्टर्स आ जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन है? प्लस का फैक्टर। जो माइनस का फैक्टर है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जब स्क्वायर रूट 5 दोनों फैक्टर सेम होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये होल स्क्वायर बना देगा। दो फैक्टर्स हैं, माइनस वाला आपस में कैंसिल आउट होगा तो प्लस वाला ऊपर स्क्वायर बना देगा। अब हम इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकेंड फैक्टर प्लस सेकेंड फैक्टर का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ प्लस आ जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट खोलने लगे हैं। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर, नीचे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। नाउ ये इसे कैंसिल आउट, वी विल गेट 5 माइनस 2, जो सर्ड्स होती हैं वापस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सो 5 2 10 प्लस ये कैंसिल आउट 2 प्लस ये कैंसिल 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 एंड प्लस 2 5 माइनस 2, क्योंकि इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 कैंसिल आउट। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 एंड 12 प्लस 2 दैट इज़ 14, सो 14 ओवर 5 माइनस 2 3। तो ये आंसर आ गया x प्लस 1 ओवर x का। रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या तो एलसीएम ले लिया, खुद ब खुद डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, स्क्वायर रूट टर्म गायब हो जाएगी डिनोमिनेटर से, या आप इसको अलग अलग रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू तो आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आप इस टर्म का स्क्वायर फाइंड कर लें तो आपके पास ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, फॉर्मूला ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। 14 स्क्वायर इज़ 196 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9। दिस विल बी कैंसल आउट विद दिस। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर ऐड हो रहा है प्लस 2, वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। 196 ओवर 9 माइनस 2। एलसीएम लेंगे अब हम। एलसीएम आ जाएगा 9, 196 एज इट इज़, 2 के नीचे 1 है तो 9 2 ज़ा 18। अब 196 माइनस 18 178 ओवर 9। ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू। तो सिंपली आप एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब ले लें। सो एज एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 14 ओवर 3, दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3xy, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे एक्स ही है और वाई की जगह पे 1 ओवर एक्स है, इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू, इनके भी आपने क्यूब्स ले लिए। अब एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास नॉन नहीं है 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू सेम यही 14 ओवर 3 equals to 2744 over 27. This 3 will be cancelled out with this 3. अभी जो 14 है ये वहाँ जाके माइनस होगा, ये जो 14 है वो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट हो गया, एलसीएम ले लिया, माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का। Alright student, the last question of this exercise is question number 6. Determine the rational numbers a and b if this equals to a plus b square root 3. अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन से।
स्टूडेंट इसे भी करने के दो तरीके हैं, आप अलग अलग रैशनलाइज भी कर सकते हैं और आप इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो हम इसका एक साथ ही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगे, +1 एंड √3 -1। +1 प्लस से कैंसिल होगा तो माइनस का जो फैक्टर है वो ऊपर जाके स्क्वायर बना देगा, प्लस अब नेगेटिव वाला कैंसिल होगा तो प्लस वाला ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। ये इक्वल आ रहा है a + b √3 के। अब आपने सिंपल इसके स्क्वायर्स ओपन करने हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे a², दरमियान में -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड एंड प्लस सेकेंड स्क्वायर, प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 का √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 + 1 स्क्वायर ओवर a - b a + b, सो √3 स्क्वायर -1 स्क्वायर किसके इक्वल है a + b √3। √3 का स्क्वायर 3 -2 √3 + 1 + 3 + 2 √3 + 1 ओवर कैंसल आउट 3 - 1 = a + b √3। They will be cancel out. 3 + 3 6 7 and 8 8 over 3 - 1 2 = a + b √3। 2 1s are 2, 2 4s are 8, so a + b √3 = 4। अब यहाँ से हमने फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। a वो फैक्टर है, a वो टर्म है जिसमें कोई भी स्क्वायर रूट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं आ रही, तो वो 4 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a तो 4 के इक्वल आ गया। अब b वो टर्म है जिसके साथ √3 वाली टर्म आ रही होगी। तो आप देखिए राइट हैंड साइड पे ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें √3 वाली टर्म आ रही हो। तो इसका मतलब ये है कि b की जो वैल्यू है वो 0 है। आई समझ इस क्वेश्चन की? आपको याद होगा हमने रियल एंड इमेजिनरी क्वेश्चन में भी ऐसे किया था कि a + b आयोटा होता था, तो हम कहते थे कि ये 4 + 2 आयोटा के इक्वल है। तो इसमें हम कहते थे कि a जो है वो 4 है और जो b है वो 2 है। इसके साथ आयोटा होता था तो आयोटा वाली टर्म। सेम ऐसे ही जो यहाँ पर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट टर्म है वो a होगी, क्योंकि a के साथ ऐसी कोई टर्म नहीं है। b के साथ √3 वाली टर्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो भी √3 वाली टर्म है वो b की वैल्यू है, वो जो यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ b 0 है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी 4.4 एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। आपने 4.4 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।